Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, metals in bioinorganic environment, structure, function and role in health and disease. And this is our 8th lecture, functions and proteins of copper. So, let's start the lecture about copper. So, the importance of copper, as you know about the involvement of copper in foods and a lot of things which we normally take in daily. And you also know the importance of copper in our body. So the recommended daily allowance of copper, the amount present in our body is 75 to 150 milligram per 70 kg body weight, and the daily demand of copper is 900 to 1300 microgram per day. So as you can see here, that a 70 kg body weight of a person may have the amount of copper present 75 to 150 milligram, and the daily demand means the amount of copper which is required daily is vary from 900 to 1300 microgram per day. So this amount is very less as compared to the amount present in the body. So it is not very difficult to achieve the daily demand of copper. And you can also see the importance of copper from its daily demand, that if it is required in microgram per day, so you can understand where the copper lies, in macro elements or in micro or trace elements. And I think you can understand what I mean to say. So copper basically resides in trace elements, but is still very important. So here you can see the importance of copper from this slide. As you know, nowadays bottles are available which contain inside material which is made up of copper. So if you drink water which is stored in a copper bottle, so you will get numerous health benefits, like first of all, it prevents waterborne diseases. Number 2, it aids in weight loss. Number 3, it promotes healthy skin. Number 4, it boosts heart health. Number 5, it keeps digestive system healthy. And number 6, it slows down the aging process. And number 7, it beats anemia. And number 8, and very important, it fights with inflammation. So how will you get all of these benefits from copper, and what are the mechanism which basically lies inside all these benefits? So we will study one by one. So biological significance of copper. In human, copper exists in two oxidation forms, all you know very well, in +1 and +2 oxidation state. However, most of the copper is present in +2 oxidation state. ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी में भी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एग्जिस्ट करती हैं कॉपर की. कॉपर +1 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कॉपर 2+ फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. लेकिन जो ज़्यादातर कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है और एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर +1 फॉर्म में होता है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होती है, यानी कि जब कॉपर जो है वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसमें फिर वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है और वापस फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है. The ability of copper
to easily attach and accept electrons, explains its importance in oxidative reduction processes and in disposing and removing free radicals. अब क्योंकि हमने ऊपर देखा कि कॉपर +1 एंड +2 दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो जिस वजह से कॉपर में बॉडी के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। और इस वजह से जो है क्योंकि आपको पता है कि अगर +2 फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो +1 फॉर्म में चला जाएगा। तो ये जो एबिलिटी है +2 फॉर्म से +1 फॉर्म में जाने की और बहुत इजीली कन्वर्ट होने की, बिकॉज आपने अगर इन कॉपर की डी ऑर्बिटल डायग्राम बनाई हो तो आपको पता होगा कि कॉपर +2 भी स्टेबल होता है और कॉपर +1 भी स्टेबल होता है। तो आप ये इजीली देख सकते होंगे कि कॉपर क्योंकि स्टेबल होता है दोनों फॉर्म्स में और इजीली कन्वर्टेबल भी होता है, तो दैट्स वाई copper is involved in the body within the oxidative reduction processes, number one, and due to this property it also involved in disposing and removing free radicals. Copper plays an important role in the metabolism, largely because it allows many critical enzymes to function properly. Activity of these copper enzymes is highest in the heart, brain, liver and kidney. तो कॉपर के बहुत सारे एंजाइम्स हैं, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लिवर एंड किडनी। और इन तमाम जो ऑर्गन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप इनके कलर देखें तो उससे आपको बहुत इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉपर जो है वो इनमें रिच होता है। तो दैट्स वाई ये जितने भी कॉपर एंजाइम्स हैं ये इन 4 मखसूस आज़ा में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, और इन एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शनिंग डेफिनेटली डिपेंड करती है कॉपर की अमाउंट के ऊपर, डेली रिक्वायरमेंट के ऊपर। We can say that copper is very important and it plays a lot of biological applications or functions. Now continue biological significance of copper. Copper is necessary for the maturation of T cells and the maintenance of a healthy white blood cell count, which destroy microorganisms. Therefore, it is very important in creating the immune response to infection. अब ये जो हमने ऊपर देखा था कि जो कॉपर है वो बैक्टीरिया को किल्स करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी वजह जो है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि बिकॉज कॉपर इज़ नेसेसरी फॉर द मैचुरेशन ऑफ टी सेल, ठीक है। टी सेल्स जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते हैं कि क्या होते हैं, और जो है टी सेल्स के बाद जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या होते हैं। और कॉपर जो है वो दैट्स वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी होती है कॉपर में, बिकॉज वो मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी वाइट ब्लड सेल काउंट में इन्वॉल्व होता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में कॉपर इन्वॉल्व है, क्योंकि जब कॉपर टी सेल्स की मैचुरेशन और वाइट ब्लड सेल्स की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होगा, देन डेफिनेटली वो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगा, इन्हांस करेगा, एंड ऑल्सो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स इन्फेक्शन, ठीक है, उसको भी इन्हांस करना कह लें या इनिशिएट करना कह लें कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको क्रिएट करने में कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन in the maturation of T cells and the maintenance of healthy white blood cells.
सो आप इधर इस फिगर में थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वाटर जिनमें जो हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने में कॉपर इन्वॉल्व है। एंड दैट्स वाई यू नो दैट कि जैसे ही फॉरेन मटेरियल आता है तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो फॉरेन उस फॉरेन मटेरियल को जो है वो यू कैन से दैट उसको रिकग्नाइज कर लेता है और फॉरन उसको किल कर देता है। एज अ कोफैक्टर फॉर द एंजाइम टायरोसिनेज, कॉपर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द स्किन पिगमेंट मेलानिन। आप सब जानते हैं कि स्किन पिगमेंट मेलानिन आप सबको पता है कि क्या होता है। ऑफ कोर्स जो हमारी स्किन है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से स्किन का कलर जो है वो डेवलप होता है। उस पिगमेंट को जो स्किन का कलर होता है उसको मेलानिन कहा जाता है। और एंड डेफिनेटली जितनी भी वाइट कलर स्किन होती है उसमें मेलानिन जो है क्वांटिटी बहुत कम होती है, और जैसे जैसे स्किन का कलर डार्क होता जाता है वैसे वैसे उसमें मेलानिन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ये जो पिगमेंट होता है इसकी सिंथेसिस में, ये जो मेलानिन की सिंथेसिस है उसमें कॉपर का एंजाइम इन्वॉल्व होता है टायरोसिनेज। ठीक है, टायरोसिनेज जो है वो इन्वॉल्व होता है मेलानिन सिंथेसिस में। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से ये होता है कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इसको एनिमेशन के थ्रू दिखाया जा रहा है कि जो टायरोसिन होता है उससे डोपा बनता है, डोपा से डोपाक्विनोन बनता है और डोपाक्विनोन से मेलानिन बनता है। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस है। टायरोसिन जो कि एक अमाइनो एसिड होता है हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, उससे मेलानिन बनने तक जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है डेफिनेटली इन द फर्स्ट स्टेप in order to convert tyrosine into melanin you require tyrosinase। और ये जो टायरोसिनेज होता है, ये टायरोसिनेज जो है ये कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, यानी कि इसमें कोफैक्टर के तौर पर कॉपर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब इस मेलानिन के सिंथेसिस में टायरोसिनेज इन्वॉल्व हो गया जो कि कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है। इससे होता क्या है, या इस मेलानिन का फ़ायदा क्या है? क्या मेलानिन का सिर्फ यही फ़ायदा है, बल्कि हम तो शायद इसको नुकसान समझते हैं कि जितनी मेलानिन आपकी स्किन में होगी उतना ही आपका कलर डार्क होगा। तो हमें तो शायद ये नुकसान लगे कि हम ब्राउन कलर इसलिए हैं कि हमारी स्किन में जो है वो मेलानिन की क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन बिलीव मी, ये जो मेलानिन की क्वांटिटी का ज़्यादा होना है या हमारा ब्राउन कलर होना है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो मेलानिन है ये हमें स्किन कैंसर से महफूज रखता है। कैसे? बिकॉज़ ये जो मेलानिन है जो कि नेचुरल पिगमेंट के तौर पर हमारे हेयर्स एंड स्किन में इन्वॉल्व होता है, ये क्या करता है कि ये यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेलानिन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यूवी रेडिएशन जब स्किन पर अटैक करती है तो ये मेलानिन होता है जो कि इस अटैक से जो है वो स्किन को सेव रखता है, बचाता है। और बिल्कुल यही वजह है कि बाहर जो वाइट कलर्स स्किन होती है उन लोगों को जो है वो स्किन कैंसर बहुत जल्दी हो जाता है या बहुत आसानी से हो जाता है। उसकी वजह यही है कि उनकी स्किन में मेलानिन की क्वांटिटी बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है, जिस वजह से वो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं होती, एंड दैट्स वाई उनको स्किन का कैंसर हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ जो ब्राउन कलर हम लोग होते हैं जिनकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो हमें यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिस वजह से इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर। So again it is very important to provide protection of skin and hairs. Copper is a key constituent of respiratory enzyme complex cytochrome C oxidase,
and we will discuss the function of cytochrome C oxidase in our next lecture, which is electron transport chain. So that's why here I will not describe what is cytochrome C oxidase and what its function. So again, the biological significance of copper is continued, and now we will see the involvement of copper in collagen and elastin. What is collagen and elastin? मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग जानते हैं कि कोलेजन और इलास्टिन क्या होती है. More than half of the copper in the human body enters into the composition of muscles and bones. Its concentration is high in the liver, brain, kidneys and heart. ठीक है. जो कॉपर है ह्यूमन बॉडी का, जो हमने अमाउंट पढ़ा कि जी इतने मिलीग्राम पर 70 kg बॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसमें ज़्यादातर जो कॉपर का अमाउंट है वो कंपोजिशन यानी कि मसल्स एंड बोन्स को बनाने में लग जाता है. और मसल्स एंड बोन्स को कौन बनाता है? मसल्स एंड बोन्स के बनने में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, जो एक्चुअल मटेरियल इन्वॉल्व है, वो कोलेजन एंड इलास्टिन है. सो बेसिकली कोलेजन या इलास्टिन जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ पाएंगे कि कोलेजन और इलास्टिन जो है उसकी किस तरह उसकी प्रोडक्शन में कॉपर इन्वॉल्व है, एंड दैट्स वाई जो हमारा मोस्ट ऑफ द कॉपर है वो मसल्स एंड बोन्स पे चला जाता है. कॉपर प्लेज क्रूशियल रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन of the heart muscles as well as in the healthy functioning of small blood vessels. This is due to its requirement in the production of collagen and elastin, which further augments its importance in the development and maintenance of bones and joints. ठीक है. ये समझें कि ऊपर वाली बात ही जो है उसको कहने का एक और तरीका है कि क्योंकि जब मसल्स एंड बोन्स की प्रोडक्शन की मेंटेनेंस में या कंपोजिशन में कॉपर इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन. ठीक है. तो दैट्स वाई उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हार्ट मसल सेल्स में की कॉन्ट्रैक्शन में है, and that's why वो healthy functioning of heart muscles and healthy functioning of small blood vessels के लिए बहुत important है. Now अब जानना ये ज़रूरी है कि how copper is involved in the production of collagen and elastin. So there is an enzyme lysyl oxidase which is a copper dependent enzyme. ठीक है. Lysyl oxidase. It is a copper dependent enzyme that catalyzes the formation of aldehydes from the lysine residues of collagen and elastin precursors. These aldehydes undergo spontaneous reactions to form cross-linking collagen and elastin, which is essential for stabilization of collagen fibrils and for the integrity and elasticity of mature elastin. तो जनाब ये पूरी कहानी है. ठीक है. कि होता क्या है? होता ये है कि कोलेजन और इलास्टिन की बायोसिंथेसिस में जो है वो कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है, जो कि लाइसिल ऑक्सीडेज कहलाता है. ये लाइसिल ऑक्सीडेज बेसिकली करता क्या है? ये लाइसिल ऑक्सीडेज जो है ये जो लाइसिन रेजिड्यूज होते हैं कोलेजन एंड इलास्टिन प्रीकर्सर्स के. प्रीकर्सर्स वो होते हैं कि जिनसे कोलेजन एंड इलास्टिन बनती है. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रोपोकोलेजन. ठीक है.
ये जो ट्रोपोकोलेजन है ये प्रीकर्सर हुआ कोलेजन का, ठीक है। तो ये जो ट्रोपोकोलेजन है इनके जो लाइसिन रेजिड्यूज हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है लाइसिन हाइड्रोक्सी लाइसिन क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। तो ये जो लाइसिन रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कोलेजन एंड इलास्टिन, ये पेप्टाइडल लाइसिन आपको दिखाया गया है, लाइसिन है। और लाइसिल ऑक्सीडेज क्या करेगा कि इस लाइसिन रेजिड्यू जो होता है हमारा, उसके एंड में जो है वो बेसिकली अमाइनो ग्रुप लगा होता है, ठीक है, बेसिक अमाइनो ग्रुप लगा होता है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो ग्रुप होता है NH3 पॉजिटिव। इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और लाइसिल ऑक्सीडेज की वजह से, और बदले में क्या होता है कि ये जो पूरा NH3 ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर जाएगा और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। और ये जो बेसिक रेजिड्यू, बेसिक ग्रुप है NH3 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, ठीक है। तो अब ये जो रेजिड्यू बनता है जो कि एल्डिहाइडिक रेजिड्यू बन जाता है, ठीक है, ये एल्डिहाइडिक रेजिड्यू जो है ये क्या होता है कि कंडेंसेशन करके क्रॉस लिंकिंग बनाता है, और ये क्रॉस लिंकिंग जो है ये कोलेजन एंड इलास्टिन के अंदर पाई जाती है, जिस वजह से ये जो कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन्स होती हैं दे आर बेसिकली इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्रॉस लिंकिंग है कोलेजन एंड इलास्टिन की, वो सिर्फ और सिर्फ बन पाती है इस वजह से कि ये जो प्रिकर्सर्स होते हैं कोलेजन और इलास्टिन के, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म होता है जस्ट ड्यू टू दी कैटालिसिस परफॉर्म बाय लाइसिल ऑक्सीडेज विच इज़ अ कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम, ठीक है। तो कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम लाइसिल ऑक्सीडेज इन्वॉल्व इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ aldehydes from lysyl residues of the precursors of collagen and elastin proteins, ठीक है, and this aldehydes undergo further condensation and cross linking and to form the collagen fibrils, and that's why it is involved in the integrity and elasticity of mature elastin, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आप अच्छे से देख सकते हैं कि लाइसिल ऑक्सीडेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से ही एल्डिहाइडिक ग्रुप बन रहा है जो कि फर्दर क्रॉस लिंकिंग में इन्वॉल्व है। तो इस वजह से कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम लाइसिल ऑक्सीडेज इज इसेंशियल फॉर द क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन। एंड यू नो कि अगर कोलेजन एंड इलास्टिन हमारी बॉडी में हेल्दी होंगे तो हमारी बॉडी के मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी होंगे, और मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी होंगे तो वो तमाम फंक्शंस जो बोन्स एंड जॉइंट्स के हैं वो जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होंगे, और जिस वजह से ये तमाम चीज़ें बोन्स एंड जॉइंट्स जो इन्वॉल्व हैं हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेन्स के फंक्शनिंग में, तो वो फंक्शनिंग भी सही प्रॉपरली होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉपर इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइब्रिल्स। ना बहुत सारे फंक्शंस हैं कॉपर के, ठीक है, ये एक चेन है पूरी ना, तो आई नो कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ही आप समझ पाएंगे। सो कॉपर इन हीम सिंथेसिस। सो कॉपर इज प्रेजेंट इन सेल्यूलोप्लाज्मिन एंड अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेज, ठीक है। ये दो प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स कह लें हम कि जिनमें कॉपर प्रेजेंट होता है। ये एक सेल्यूलोप्लाज्मिन है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सेल्यूलोप्लाज्मिन का क्या फंक्शन होता है, और एक जो है वो अमाइनो लिवोलेनिक एसिड है, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेज है, ठीक है। So this amino livolenic acid synthase is also a copper dependent enzyme.
So these two enzymes, ceruloplasmin and aminolevulinic acid synthase, help in the formation of heme molecule, which later forms hemoglobin, which is the main functional component of red blood cells. ठीक है, ये जो है वो समरी के तौर पे इधर लिखा हुआ है कि सेरुलोप्लाज्मिन एंड अमाइनोलिवुलिनिक एसिड सिंथेज जो होते हैं ये दोनों एंजाइम्स कॉपर डिपेंडेंट होते हैं और ये फॉर्मेशन ऑफ हीम मॉलिक्यूल को पॉसिबल बनाते हैं या हेल्प आउट करते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हीम मॉलिक्यूल से ही हीमोग्लोबिन बनेगी और हीमोग्लोबिन का फंक्शन हर कोई जानता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाने में, हमारे खून को बनाने में या हमारे खून में जो है वो मैं समझती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब किस तरह ये दोनों एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। सो ALA सिंथेज, ठीक है, क्योंकि इधर ALA सिंथेज का जो फंक्शन है वो ज़्यादा क्रिटिकल है और सेरुलोप्लाज्मिन का जो फंक्शन है वो दूसरी तरफ है। तो लेकिन बहरहाल इन दोनों एंजाइम्स के फंक्शंस अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म हीम एंड हीमोग्लोबिन। सो ALA सिंथेज का क्या फंक्शन है? ALA सिंथेज इज अ की एंजाइम involved in the heme synthesis because it catalyzes the synthesis of D-aminolevulinic acid, the first common precursor in the biosynthesis of all tetrapyroles such as hemes, cobalamines and chlorophylls। ये जितने भी टेट्रापायरोल्स हैं, हीम्स, कोबालामीन्स एंड क्लोरोफिल्स, ये आप डॉक्टर शाजिया के पार्ट में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टेट्रापायरोल्स होते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल फिलवक्त जो आपके सामने है या जो हर कोई जानता है वो हीम की है। और ये टेट्रापायरोल्स कैसे बनते हैं? ज़ाहिर है हमारी बॉडी में टेट्रापायरोल्स की जो बायोसिंथेसिस होती है उसमें जो उसका फर्स्ट प्रिकर्सर है, यानी कि जहाँ से टेट्रापायरोल की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, वो जो रेजिड्यू है या वो जो अमाइनो एसिड है वो है D-aminolevulinic एसिड, ठीक है। और ये जो D-aminolevulinic एसिड है इसकी सिंथेसिस में जो है वो ALA सिंथेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हीम बायोसिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या इन्वॉल्व है? ALA, ठीक है। ALA, व्हाट इज ALA? इट इज़ D-aminolevulinic एसिड। नाउ अब ये जो एसिड है ALA है, इस ALA की फर्दर कन्वर्जन होती है। अब ये देखिए आपके लिए ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये सब के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज ये तो सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक एंजाइम से ये बना, फिर दूसरे एंजाइम से ये बना, फिर तीसरे एंजाइम के फंक्शन से ये बना, तो ये तो चेन ऑफ रिएक्शन है और फाइनली जाकर जो है वो टेट्रापायरोल बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है अगर आप उसको देखें तो फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये ऊपर ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा आपको कि फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है? अमाइनोलेवुलिनिक एसिड बन रहा है। और ये अमाइनोलेवुलिनिक एसिड जो है ये किस वजह से, किसकी मदद से बन रहा है? ये ALA सिंथेज की मदद से बन रहा है और जिस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि ALA synthase is a copper dependent enzyme, so that's why we can say that ALA synthase is involved in the heme biosynthesis, ठीक है। so it's basically a chain of reaction। तो ये तो हो गया ALA synthase की involvement in the heme synthesis। now how ceruloplasmin is involved and where ceruloplasmin is involved? So copper is essential for absorbing iron from the gut। Copper containing protein ceruloplasmin helps in converting iron absorbed in ferrous state from the intestines to ferric state and incorporate it into the transferrin।
thus helps in transport of iron to the sites of heme synthesis. ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत ही क्लियरली जो है वो इधर आपको ये बताया गया है कि जो हीम सिंथेसिस है वो ट्रांसफेरिन की मदद से होती है या ट्रांसफेरिन वहाँ इन्वॉल्व होती है। और ट्रांसफेरिन जो है बेसिकली उसमें आयरन +3 स्टेट होता है, ठीक है। लेकिन ये +3 स्टेट जो है ये कहाँ से आती है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि +2 जो आयरन, क्योंकि आपको पता है कि आयरन जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो +2 फॉर्म में होता है, ठीक है, जो फूड से एब्जॉर्ब होता है। अब इस +2 फॉर्म से +3 फॉर्म में कन्वर्जन में इन्वॉल्व है सेल्यूलोप्लाज्मिन, जिस वजह से अब जब ये आयरन +2 से +3 में जाएगा तभी +3 फॉर्म जो है वो ट्रांसफेरिन में जाएगी, ठीक है। ट्रांसफेरिन प्रोटीन +2 फॉर्म नहीं लेगी आयरन की, ठीक है। तो +3 फॉर्म ट्रांसफेरिन में चली गई और जिस वजह से अब जो ये ट्रांसफेरिन है जिसमें +3 फॉर्म है, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट इन दी बायोसिंथेसिस ऑफ हीम, ठीक है। तो इसको अगर हम दोबारा पढ़ लें तो हमें ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। कॉपर इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग आयरन फ्रॉम दी गट, क्योंकि आयरन जो है वो +2 फॉर्म में है गट में। अब वहाँ से आयरन एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, इस तरह होगी कि कॉपर कंटेनिंग सेल्यूलोप्लाज्मिन हेल्प्स इन कन्वर्टिंग आयरन एब्जॉर्ब्ड इन फेरस स्टेट फ्रॉम द इंटेस्टिन, ठीक है। इंटेस्टिन में आयरन मौजूद है +2 फॉर्म में और सेल्यूलोप्लाज्मिन इसको कन्वर्ट कर रही है फेरिक स्टेट में, और फेरिक स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो आयरन चला जाता है ट्रांसफेरिन में। ट्रांसफेरिन इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है। और जिस वजह से द होल प्रोसेस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन टू द साइट्स ऑफ हीम सिंथेसिस, क्योंकि आयरन जो है वो ट्रांसफेरिन में होके ही जो है बाइंड होके ही जो है वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में या हीम सिंथेसिस में जाता है। So this is the whole involvement of copper in form of two most important enzymes, celluloplasmin and aminolevulinic acid synthase, in order to help the biosynthesis of heme and consequently hemoglobin and RBCs. Now again, a very important function of copper is copper as an antioxidant. Copper is a component of the enzyme copper zinc superoxide dismutase. Copper zinc superoxide dismutase, which serves as an antioxidant essential to preserve the body from damage caused by free radicals, ठीक है। ये जो कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम है ना, ये हमारी बॉडी के लिए जैसे कहते हैं ना एक सेफ गार्ड की हैसियत रखता है अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स डैमेज। आपको पता है कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो सेल डैमेज करते हैं और इनकी डैमेज जो है वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है और कैंसर कॉजिंग होती है। तो फ्री रेडिकल्स को फ़ौरन डिसम्यूटेज करना या जिसे कहते हैं कि डिसम्यूटेज का मतलब ये होता है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी फ़ौरन कन्वर्जन हो जाती है, जो है उनकी हाईली रिएक्टिव फॉर्म से कन्वर्जन हो जाती है एक स्टेबल प्रोडक्ट में, और इवन नॉट स्टेबल बल्कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट विद इन द बॉडी, जिस वजह से जो फ्री रेडिकल्स हैं ये कोई डैमेज नहीं कर पाते सेल्स को, और इस वजह से जो है वो हमारी बॉडी जो है वो कैंसर से जो है वो कैंसर जैसी बीमारियों से बच जाती है। सो मोस्टली जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का फंक्शन जो नज़र आता है वो ज़्यादातर ये जो है वो आपको नज़र आएगा सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल को डिसम्यूट करने में। इधर आपको जो है वो दिखाया गया है कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो
2 एंजाइम्स होते हैं जो कि इस सुपर ऑक्साइड आयन को जो है वो डिसम्यूट करते हैं। एक एंजाइम जो है वो मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है और दूसरा एंजाइम जो है वो कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है। दोनों सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं H2O2 में। H2O2 इटसेल्फ कोई बहुत अच्छा मॉलिक्यूल नहीं है बॉडी के लिए, और H2O2 बनते ही फिर H2O2 के ऊपर फर्दर वर्क होता है और देयर आल्सो अ लॉट ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। ये H2O2 जो है ये उस पर कैटलेज अगर अपना फंक्शन करता है तो वाटर एंड ऑक्सीजन बनता है, और बिल्कुल इसी तरीके से H2O2 पर एक और जगह से भी फंक्शन हो रहा होता है, एक और एंजाइम में इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बट इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, एंड देन विद द हेल्प ऑफ फर्दर एंजाइम्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड यू नो दीज वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। सो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इज एन एंजाइम। ये आप एक्टिव साइट का व्यू देख सकते हैं कि कॉपर जो कि 3 हिस्टिडीन रेजिड्यू से बाइंड हुआ हुआ है, और जो 4th हिस्टिडीन रेजिड्यू है वो बहुत ब्रिजिंग जो है वो करेक्टर का है, जो कि एक साइड पे एक नाइट्रोजन से कॉपर को बाइंड किया हुआ है जबकि दूसरे नाइट्रोजन से जिंक को बाइंड किया हुआ है, और फिर इस जिंक के साथ 2 हिस्टिडीन बाइंड है और एक एस्पर्टेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों मेटल्स की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। कॉपर की अपनी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है विद रिस्पेक्ट टू 4 हिस्टिडीन्स, एंड जिंक की अपनी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है विद रिस्पेक्ट टू 3 हिस्टिडीन्स एंड 1 एस्पार्टेट एसिड। So superoxide dismutase is an enzyme that alternatively catalyzes the dismutation of the superoxide radical into either molecular oxygen or hydrogen peroxide. The superoxide dismutase is an important antioxidant defense in nearly all living cells exposed to oxygen. ठीक है, और यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कॉपर +2 फॉर्म में था, सुपर ऑक्साइड रेडिकल से इसने जो है वो इंटरेक्ट किया और जो है कॉपर +1 फॉर्म में चला गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना, एंड देन फर्दर ये जो +1 फॉर्म जो बनी है यहाँ पर कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम की, ये फर्दर जो है वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल से इंटरेक्ट करेगी और कॉपर +2 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, जिस सूरत में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल होगा, और इस सूरत में जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज मॉलिक्यूल है वो दोबारा से जो है वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा, यानी कॉपर +2 फॉर्म में, और दोबारा से इस काबिल हो जाएगा कि वो फर्दर सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को जो है वो डिसम्यूट कर सके। ठीक है, तो दिस इज दी होल प्रोसेस टू डिसम्यूट सुपर ऑक्साइड रेडिकल इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड देन फर्दर डिसम्यूटेशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, and it is the whole process of defense mechanism within our body. Now, celluloplasmin. Celluloplasmin is a very important copper containing protein and it is a major protein, copper carrying protein. ठीक है, carrier है basically copper का ये protein in the blood. Celluloplasmin is synthesized in the liver containing 6 atoms of copper in its structure. Half of the copper is present in cuprous form, यानी copper +1, and half of the copper is present in cupric form, that is +2 form. ठीक है, तो इस सेलुलोप्लाज्मिन की एक्टिव होने की या कॉपर को कैरी करने की आप वजह देख सकते हैं कि एक प्रोटीन जो है वो
6 एटम्स ऑफ कॉपर को अपने पास रखती है, जिसमें से 3 जो हैं वो कॉपर +1 में होते हैं और बाकी के 3 कॉपर +2 फॉर्म में होते हैं। और ये वजह है कि ये प्रोटीन जो है ये बहुत ही एक्टिवली रोल प्ले करती है, ना सिर्फ कॉपर को कैरी करने में बल्कि फर्दर बहुत सारे प्रोसेसेस में। सेलुलर प्लाज्म कैरीज मोर देन 95% ऑफ द टोटल कॉपर इन हेल्दी ह्यूमन प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि हमारे जो प्लाज्मा होता है उसमें 95% ऑफ द टोटल कॉपर जो है वो किस फॉर्म में होता है, वो सेलुलर प्लाज्मिन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो बेसिकली सेलुलर प्लाज्मिन इज अ कैरियर प्रोटीन फॉर कॉपर। कॉपर की मज़ीद कुछ टाइप्स भी हैं जो कि कॉपर को जो है वो कॉपर की जो प्रोटीन्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिनको समझना या जिनका स्ट्रक्चर इट्सेल्फ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसकी टाइप को डिफाइन करने में। जैसे कि कॉपर प्रोटीन्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज टाइप 1, टाइप 2 and type 3 centers, यानी कि within our body there are a lot of copper proteins, and in those copper proteins copper is present either in type 1 center, type 2 center or type 3 center depending on the environment of the metal ion and of course the spectroscopic characteristics of the protein. Type 1 proteins T1 have blue copper centers with the copper normally coordinated to 2 nitrogens and 2 sulfurs. ठीक है, एंड यू नो कि अगर ये 2 नाइट्रोजन्स लिखा हुआ है तो ये 2 हिस्टीडीन मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे कॉपर अटैच होगा, और ये जो 2 सल्फर लिखा हुआ है ये डेफिनेटली सिस्टीन मॉलिक्यूल्स होंगे या मिथाइनिन मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे कि कॉपर अटैच होगा। So in type 1 copper proteins, copper is known as blue copper and it contains 2 nitrogen containing amino acids and 2 sulfur containing amino acids. It is bound with, ठीक है। In type 2 centers of copper, they are non-blue copper centers T2 with the copper coordinated to 2 or 3 nitrogens, that is definitely histidine and 1 ऑक्सीजन। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 या 3 हिस्टीडीन्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, और कोई एक जो है वो एस्पार्टेट या ग्लूटामेट टाइप होगा जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। जबकि जो टाइप 3 होता है T3, दे आर कॉपर डाइमर्स। ठीक है, ये कॉपर के डाइमर्स होते हैं, यानी कि जिसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं। Type 1 copper is EPR detectable and referred as blue copper due to its intense absorption at a wavelength of 610 nanometer. Strongly distorted coordination sphere due to 3+1 comprised of 2 histidine, 1 मिथायोनिन एंड 1 सिस्टीन। अब देखें 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग तो ठीक है हिस्टीडीन हो गए, लेकिन 1 मिथायोनिन और 1 सिस्टीन यानी अगर 2 सल्फर जो हैं वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से होंगे तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन एंड मिथायोनिन इज़ वेरी डिफरेंट। और इसी एग्जाम्पल्स में हमारे पास प्लास्टोसाइनिन है, एजुरिन है, नाइट्रेट रिडक्टेज है। ठीक है, ये वो प्रोटीन्स हैं या ये वो एंजाइम्स हैं जिनमें कॉपर जो है वो टाइप 1 कॉपर होता है, यानी कॉपर का जो सेंटर होता है या कॉपर जिस तरह प्रोटीन से बाइंड होता है वो जो है वो टाइप 1 की फॉर्म में आता है। Type 2 copper is detectable in low field EPR measurement and has no contribution to the UV spectrum
टाइप 2 इज़ देयरफॉर रेफर्ड एज अ नॉन ब्लू कॉपर, ठीक है, क्योंकि इनका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं होता, तो दैट्स वाई फिर इनको नॉन ब्लू कॉपर कहते हैं. The electronic structure of this site is comparable to that of square planar copper complexes. अच्छा, इनका जो स्पेक्ट्रा होता है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर कॉपर कॉम्प्लेक्सेस की तरह होती है, यानी कि प्लेनर ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल नहीं होती, ठीक है. और 3 हिस्टीडीन जो हैं वो मौजूद होते हैं, और एक जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग एंजाइम अमाइनो एसिड होता है, या वाटर मॉलिक्यूल या हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है. Essentially, planar coordination is fair with 3 histidine and 1 water or substrate molecule, ठीक है. So it is basically a planar molecule या planar geometry. Type 3. Type 3 copper is diamagnetic. It forms an anti-ferromagnetically coupled cluster and therefore EPR silent, ठीक है. T3 copper is characterized by the UV shoulder at 330 nanometer due to efficient charge transfer involving an oxygen atom or a hydroxyl group that bridges the copper pair. Oxygen bridge dimer with a copper-copper distance of 360 pm. Examples are hemocyanin and tyrosinase, ठीक है. ये आप देख सकते हैं, 2 कॉपर हैं, अलग अलग सेंटर है, जिनको एक ब्रिज किया हुआ है ऑक्सीजन कंटेनिंग रेजिड्यू, ठीक है. दोनों के पास जो है वो 3 हिस्टीडीन अपने हैं, ठीक है. और इसी वजह से जो है ये जो प्रोटीन्स हैं इनमें चार्ज ट्रांसफ़र पीक आती है, जो कि यूवी शोल्डर कहलाती है, क्योंकि डेफिनेटली ये छोटी सी पीक होगी 330 नैनोमीटर पर जो ऑब्जर्व होती है. और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ऑक्सीजन ब्रिज इन्वॉल्व होती है दोनों कॉपर को बाइंड करने में, ऑक्सीजन ब्रिज इन्वॉल्व होता है. डायमैग्नेटिक सेंटर होते हैं, दैट्स वाई दे आर EPR साइलेंट. हीमोसाइनेंस. नाउ व्हाट आर हीमोसाइनेंस? हीमोसाइनेंस आप इसको हीमो जो है उसकी स्पेलिंग आप जो ओल्ड फैशन है उस तरह भी लिख सकते हैं, HAEMO, हीमो. Hemocyanin are proteins that transport oxygen throughout the bodies of some invertebrate animals. यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम अगर आपको थोड़ा सा याद हो आयरन का, तो जो है वो हीमोग्लोबिन करती है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, लेकिन वो ह्यूमंस में. जबकि सिमिलरली हीमोसाइनेंस जो होते हैं वो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स में हीमोग्लोबिन का फंक्शन जो है वो अंजाम देते हैं और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. Hemocyanin contain 2 copper atoms that reversibly bind a single oxygen molecule, ठीक है. इधर आप देख सकते हैं ये एक्टिव साइट की पिक्चर है क्लोज, ठीक है. ये फुल प्रोटीन मॉलिक्यूल है हीमोसाइनिन का, और ये जो है मेटालो सेंटर जो है उसका क्लोज व्यू है. ऊपर भी आप देख सकते हैं और नीचे भी देख सकते हैं. द डिफरेंस इज़ कि ये जो पिक्चर बी में आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑक्सीजन फ्री फॉर्म, एंड ये जो सी में आप देख रहे हैं ये ऊपर जो है ज़्यादा क्लियर है. सो दिस इज़ ऑक्सीजन बाउंड फॉर्म, ठीक है. 2 कॉपर एटम्स होते हैं एक हीमोसाइनिन मॉलिक्यूल में, एक कॉपर एटम है और वो 3 हिस्टीडीन से बाइंड है, दूसरा कॉपर एटम है और ये भी 3 हिस्टीडीन से बाइंड है. और इन दोनों के दरमियान जो ब्रिजिंग है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सरंजाम दे रहा है. और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जब इस तरह की जो है वो कॉपर सेंटर होता है तो वो कौन सी टाइप में आता है. तो हीमोसाइनिन बेसिकली टाइप 3 कॉपर सेंटर्स में आता है. They are second only to hemoglobin in frequency of use as an oxygen transport molecule, ठीक है.
तो हीमोग्लोबिन के बाद जो प्रोटीन्स हैं जो कि अबंडेंट हैं या जिनका फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, वो हीमोसाइनेंस है। अनलाइक द हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होती है वो रेड ब्लड सेल्स में होती है, ठीक है। हीमोसाइनेंस आर नॉट बाउंड टू ब्लड सेल्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल से बाउंड होती है, जबकि जो हीमोसाइनेंस होती हैं दे आर नॉट बाउंड टू रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, बट आर इंस्टेड सस्पेंडेड डायरेक्टली इन दी हीमोलाइट, ठीक है, बजाय इसके कि रेड ब्लड सेल से बाउंड हो, ये सस्पेंडेड होती है हीमोलाइट में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है आपको पता है वो रेड ब्लड सेल से बाउंड होती है, जबकि हीमोसाइनेंस जो होती है वो रेड ब्लड सेल से बाउंड नहीं होती। ये डिफरेंस होता है इन दोनों की, एक तरीके से कहना चाहिए लोकेशन कह लें या बाइंडिंग कह लें। ऑक्सीजनेशन causes a color change between the colorless copper 1 deoxygenated form and the blue copper plus 2 oxygenated form, ठीक है। ये जो इस हमने अभी पढ़ा कि जो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म है या डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म है ये कलरलेस होती है और इसमें कॉपर प्लस 1 फॉर्म में होता है, ठीक है, जबकि जो ऑक्सीजन बाउंड फॉर्म या ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होती है उसमें कॉपर प्लस 2 फॉर्म में होता है, ठीक है, जिस वजह से ये ब्लू कलर जो है वो शो करती है। आपको अच्छी तरह पता है कॉपर प्लस 1 कलरलेस होता है, जबकि कॉपर प्लस 2 जो है वो ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम अगर कॉपर प्रोटीन्स के रोल को समराइज कर लें तो बेहतर होगा। कॉपर पार्टिसिपेट्स इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। इट्स रोल are as widely varied as simple electron transfer, oxygen activation and oxygen transport. हम इधर इसके रोल्स बता रहे हैं ऑक्सीजन वो कॉपर प्रोटीन्स के, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रोल्स जो हैं ये कहीं ना कहीं आयरन प्रोटीन्स भी परफॉर्म करते हैं। खैर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, उसका काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं। सेल्यूलोप्लाज्मिन कॉपर कैरियर है और इसका एक और फंक्शन क्या है कि ये आयरन प्लस 2 को आयरन प्लस 3 में कन्वर्ट करता है। हीमोसाइनिन का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, बट नॉट इन ह्यूमंस बट इन सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ब्लू प्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ब्लू प्रोटीन्स मतलब कॉपर प्लस 2 फॉर्म में है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए बेस्ट है, बिकॉज कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 में कन्वर्ट हो सकता है और दोबारा से कॉपर प्लस 2 में रीजनरेट हो सकता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जिसका काम एलिमिनेशन या डिसम्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉपर, नहीं बल्कि ऑल अबाउट नहीं कह सकते हम, अभी और बहुत सारी चीज़ें कॉपर से रिलेटेड बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो ये सिर्फ जो है इनिशियल जो कॉपर का लेक्चर है इसमें हमने फंक्शंस ऑफ कॉपर को देखा है विद इन द बॉडी एंड द रोल ऑफ डिफरेंट कॉपर प्रोटीन्स हमने पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर को एंड द डिजीज़ रिलेटेड टू कॉपर टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी उसको हम इन डिटेल में पढ़ेंगे।